Let's start the introduction of the chapter The Necklace by Gerde Mapson. In fact, this is a story of a lady who falls a victim to her own fate or by her, you can say, bad habits. She was born in a very poor family and got married to one petty clerk of education department. He, Mr. Loisel, tried to keep her very happy, but she was having some other ideas in her mind. She doesn't listen him, and in fact, at some of the times, she wishes for very expensive food, expensive clothes, and expensive environment even. Mr. Loisel tries his level best and tries to keep her happy, but she doesn't. And at last, one day, Mr. Loisel brings one invitation of education minister's party. That was a night party, in fact. Then she says to him, that what I'll wear there, the rich people will come over there, and I don't have. Then he just gave him 400 francs, which he had just kept from his, you can say, saving. He gives her, and she got a very good, you can say, night dress. They go to the party, but before going to that one, she was not willing to just go there. Again, she was she was not happy, and she asked that what I'll wear in my neck. I need some ornament. I don't have a good ornament just to look very smart there in the night. Then he says that yes, you have a very rich friend, and Mrs. Forestier is there. You just ask, because she may be having something good for you for that night. She approaches her and asks her and get her diamond set. She goes to the party, and she was really flourishing like anything. Everybody wants to make friendship for her, and a lot of men officers were hanging around her, and lastly she was the star of the night. She gained a lot of appreciations and she was really happy. She was on cloud nine. But they returned very happily and at the home, to their home, and lastly, when she was there in front of the mirror for the last time at morning 4 o'clock, she found that her necklace was not there. Means a necklace, her neck was naked. Necklace was not there on the neck. She immediately cried. Her husband also cried. Lastly, her husband goes and searches there, but he didn't find. He even goes to the, that chariot honors, and even given one newspaper, you can say, notifications also, but he doesn't find that one. Lastly, they have to pay, or they have to give back that diamond necklace to that Mrs. Forestier, and they bought it for 36,000 francs. 14,000 francs were being given by his father, Mr. Loisel's father. Rest all money was being just accumulated through the money lenders, and then you can say the persons who give the money on interest. Heavy interest was being paid by them. It took 10 years. It took 10 years to repay the amount. And after 10 years, when she was strolling in the evening on a street, then she met Mrs. Forestier. Mrs. Forestier didn't recognize her. She says, yes, I am so and so. I'm Matilda Loisel. Like, hey, what are you? How are you looking? What happened to you? And like that voice. Lastly, she tells the story, the pathetic story, that I asked one necklace diamond from you, and that was being just misplaced, and we got it in 36,000 francs, and lastly it was being given to you. Then she said, oh, very sad, because my diamond necklace was worth only for 500 rupees. 500 francs. That was not a real one. That was an artificial one. And with that one, she felt too much that yes, she has spent her whole life, her figure has been changed. She was looking very old now.
Mr. Loisel also has just spent extra time, especially on one evening shop, just doing the overtime for 5 paisa per copies he was writing and all that one. So it was a mistake of that lady who just spoiled the whole life of a husband and a wife, and they paid it. Of course, that lady faced it very courageously, and she was doing everything of her home. She changed her home to a very normal locality, and she was doing everything. Means she just said goodbye to the maid, and she was doing her whole homework, including the kitchen work and all that one. So now she was a normal and a very tough lady. Lastly, we can say that it was a mistake of Matilda, who just ruined or spoiled her whole life, including her husband. So एक बार आइए मैं हिंदी में भी बता देता हूँ. ये कहानी बड़ी ही रोचक है. ये एक औरत के बारे में, मीन्स एक नौजवान, एक शादीशुदा औरत के बारे में है जिसका नाम मटिल्डा लॉयजल है. वो जो है एक गरीब परिवार से होती है, और वो आगे भी जो है उसकी जो शादी होती है वो एक गरीब से, एक यूँ कहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक क्लर्क से होती है. वो उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, परंतु ये बहुत सुंदर है और इसके मन में जो है बहुत आलीशान चीज़ों के, आलीशान खाना और जो है बहुत ही भव्य टाइप के जो है कपड़े और इन सब चीज़ों की जो है इसके मन में चलती रहती है. ये बड़ी परेशान रहती है, ये बड़े बड़े सपने देखती है. एक दिन इसका पति जो है उसके एजुकेशन मिनिस्टर के वहाँ से एक इनविटेशन लेके आया, तो ये बड़ी उदास हो गई. बोली इसका मैं क्या करूँ? तो बोलता है कि नहीं, आप वहाँ पार्टी में चलेंगे, आपका जो है आउटिंग हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे. बोले नहीं, मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं. उसने कहा कि ठीक है, आप जो है वही ड्रेस डाल लीजिए जो आप थिएटर वगैरह जाती हैं. परंतु वो नहीं मानती. फिर उसको वो 400 फ्रैंक्स देता है जो उसने बचत करके रखे हुए हैं अपनी जो है किसी पिकनिक पार्टी वगैरह के लिए. तो फिर वो उसकी जो है ड्रेस सिलवा लेती है. फिर भी वो उदास रहती है. बोलता है अब क्या बात है? बोले कि मेरे को जो है गले में पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है. तो वो बोलता है ठीक है, आप ऐसे करो, आपकी एक दोस्त है मिसेस फॉरेस्टियर, वो काफ़ी रिच है, आप उससे जो है गले के लिए कोई हार वगैरह मांग लो. वो उसके पास जाती है और जो है एक डायमंड नेकलेस जो है लेके आ जाती है. वो रात को पार्टी में जाती है. पार्टी में जो है वो पूरे अपने शवाब पे होती है. वहाँ पे हर कोई उसी को देखता है. उसने जो है पूरे वो यूँ कहिए कि लेट नाइट तक वो खूब नाचती रही, और जो है पूरे ऑफिसर्स और वो जो लोग थे वो उनका जो है केंद्र बिंदु बनी रही. हर कोई उससे जो है दोस्ती करना चाहता था. इस प्रकार का जो दिखाया गया है चैप्टर में. 4 बजे के करीब वो अपने घर पहुंचते हैं. घर पे आके वो आखिरी बार अपने को जो है उस नेकलेस के अंदर निहारना चाहती थी. वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसने पाया कि उसका नेकलेस गायब था. वो एकदम से चिल्लाई. उसका पति भी एकदम से उसके पास आया. क्या हुआ? वो रोने लगी. बोली नेकलेस गायब हो चुका था. उसका पति रात को गया घोड़ा गाली वालों के पास, और जो है उसने अखबार में भी एडवर्टीज़मेंट दी, परंतु वो जो है नहीं मिला. आखिरी में उन्होंने मिसेस फॉरेस्टियर को वो लौटाने के लिए जो है 40,000 में जो है कहीं बात की, और वो 36,000 फ्रैंक्स का उनको पड़ा. उसने जो पैसा था मोटे ब्याज पर लिया, ब्याजखोरों से और सूदखोरों से वो पैसा लेके, और उसने जो है उसको वो 36,000 रुपीज़ का एक नेकलेस रिटर्न किया. इस पैसे को उतारने के लिए 36,000 फ्रैंक्स को उनको 10 साल लग गए. अब उसने अपनी मेड को भी, नौकरानी को भी हटा दिया, और वो घर का सारा काम करती थी. अब वो बहुत बचत करने लग गई थी. वो एक जो है सामान्य सी गृहिणी में कन्वर्ट हो गई थी. भारी भरकम सारा घर का जो काम था. अब उन्होंने मकान भी बदल लिया था. वो एक ऐसे मकान में चले गए थे जो एक दुसत्ती टाइप का होता है, एटिक टाइप का, घटिया टाइप का. वो हर एक जो है पैसा बचा रहे थे अपनी जो है ज़िंदगी के लिए, और 10 साल में उन्होंने वो पैसा उतार दिया. यहाँ तक कि मिस्टर लॉयजल को भी ओवर टाइम करना पड़ा. शाम को जो है एक मुनीम के रूप में उसको एक पेज को लिखने के लिए लगभग 5 पैसे मिलते थे. तो 10 साल के बाद वो जो है, जब उन्होंने वो उतार लिया, तो एक दिन वो गली के वहाँ पे घूम रही थी.
उसने मिसेस फॉरेस्टियर को पहचान लिया, उसने आवाज़ लगाई, परंतु मिसेस फॉरेस्टियर ने उसको पहचाना नहीं। बोला कि मुझे आपसे गलती हुई है, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोलती है कि मैं मिसेस मटिल्डा लॉयज़ल हूँ। तो वो बड़ी सरप्राइज़ हुई, बोला कि आपकी ये क्या शक्ल हो गई है। तो उसने बताया कि जो है इस तरह से जो आपका नेकलेस लिया था वो गायब हो गया था और उसके बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो वो बड़ी सरप्राइज़ हुई और उसके दोनों हाथ पकड़ के बोलती है, बहन वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। तो इस तरह से जो है उसने एक तरह से अपनी जो है प्रॉब्लम उसको बताई और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक आदमी मीन्स एक आदमी या औरत अपनी जो है भाग्य का शिकार बनता है अगर उसकी आदतें गलत हों। वो एक अपने हैसियत से ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ों को चाहती थी और अपने पति के साथ वो ठीक नहीं रहती थी। अपने पति को वो हर चीज़ के लिए विवश करती थी, बेबस करती थी, वो खुश नहीं रहती थी। उसको बहुत बड़े बड़े शौक़ थे और उसके शौक़ उसको ले डूबे। आखिरी में उसने जो है अपने और अपने पति को जो है यूँ कहिए कि जो है एक गड्ढे में धकेल दिया और दोनों को जो है उस चीज़ का सामना करना पड़ा जो कि नेचुरल नहीं थी और उन दोनों को जो है वो कीमत चुकानी पड़ी जो लगभग 10 साल उनकी ज़िंदगी के ले गई और उनकी पूरी जवानी उस पैसे ने ख़त्म कर दी। तो हमें अपने लाइफ में ऐसे कोई शौक़ नहीं पालने चाहिए, डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो हमारे लिए नकारात्मक हों। यथार्थ या वास्तविकता में जिएं, वही जीवन जो है सही रहता है। ये इस चैप्टर का संदेश भी है। तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन करूँगा, वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। उसमें जो मेन कलर्ड पोर्शन है या अंडरलाइंड पोर्शन है उसमें से मैं निकलूँगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री का चैप्टर है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। तो हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में मैं उसको भी कंप्लीट कर दूँगा।